اور تاشرہ نے ارغوز کو وہ سب کچھ بتا دیا ہوگا جو ابھی پیش آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ازبیلا پر حملے کے وقت ہمیں ارغوز کی فوجیں بالکل تیار ملیں گی؟ میں نے پوچھا۔ میں آج رات اس سلسلے میں پوری معلومات حاصل کر لوں گی، لائشہ نے جواب دیا۔ میں نے ابھی تک اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس لڑائی میں فتح ہماری ہوگی، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ البتہ کچھ سیاہ دھبے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، میں نے مسکراتے ہوئے لائشہ سے پوچھا۔ میں اس کے ساتھ مذاق کرنا چاہتا تھا۔ جن دنوں تم نفریتا کی زیر نگرانی اپنے علم کی تکمیل کر رہی تھی، تو کیا تمہیں کسی دیوتا نے وصل کی دعوت نہیں دی؟ لائشہ ہنسنے لگی اور پروفیسر اس کی ہنسی میں سونے کے سکوں کی سی جھنکار تھی۔ اس کا حسین چہرہ کچھ اور زیادہ حسین ہو گیا۔ اس کے حسن میں بلا کی کشش اور معصومیت تھی۔ ایک تو مجھے نفریتا کی سرپرستی اور ہدایات سے حاصل تھیں، جس نے مجھے تمام مشکلات اور خطرات سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا۔ دوسرے یہ کہ اکیاس میں کوئی جذباتی لڑکی نہیں ہوں۔ میری ماں، میرے باپ اور میری ماں کے شوہر کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، اس نے مجھے وقت سے بہت پہلے عاقل و بالغ بنا دیا اور دنیا کے مسائل کو سمجھنے اور ان سے نابرد آزما ہونے کا حوصلہ عطا کر دیا۔ تو کیا مجھ سے جذباتی غلطیاں ہو سکتی تھیں ایسے میں؟ بہت خوب، میں نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن کبھی نہ کبھی تو تم سے یہ جذباتی غلطی سرزد ہوئی ہوگی۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا اکیاس، لائشہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ وقت کب آئے گا اور وہ شخص کون ہوگا جو اس جذباتی ہنگامے میں میرا شریک ہوگا۔ مجھے معلوم ہے، مجھے سب معلوم ہے، لیکن اس کا وقت سے پہلے انکشاف بسود ہے۔ لائشہ نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتی رہی اور میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا۔ معاف کرنا اکیاس، اس نے بیک وقت جیسے ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ مخفی علوم سے آگاہی انسان کے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باعث زحمت بھی۔ بہت سی باتیں مجھے ایسے بھی معلوم رہتی ہیں جو دل کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، اور ان کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی ان کا غم دل کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تمہیں ان سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تم تو خود بہت ساری قوتوں کا ایک منبع ہو۔ فتح و شکست، کامیابی اور ناکامی، دولت اور اقتدار، موت اور زندگی، یہ سب تمہارے لیے بے معنی الفاظ ہیں۔ تمہارا وجود وقت کی طرح امر اور انمٹ ہے۔ تمہارے حوصلوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور پھر وہ خاموشی میں ڈوب گئی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا جب میں اور لائشہ واپس محل میں آئے۔ بوکام کھانے پر ہم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ آج میں نے لائشہ سے بہت سے باتیں کی تھیں اور اس کے دل کی گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ مخفی قوتوں کا مالک ہونے سے قطع نظر لائشہ ایک ذہین لیکن مظلوم لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا باپ کون ہے۔ وہ لوگوں کو یہ باور کرانے پر مجبور تھی کہ وہ فرناس کی اولاد ہے، اور بوکام کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو بوکام کی اولاد نہیں کہہ سکتی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی پروفیسر۔ انسان نے بھی اپنے لیے کیسے کیسے قاعدے اور قانون بنائے ہیں اور خود پر کیسی کیسی پابندیاں عائد کی ہیں۔ وہ خود ہی ان پابندیوں کا شکار ہو کر کس طرح دل ملاتا اور تڑپتا رہتا ہے۔ ان بندھنوں میں جکڑا ہوا خود کو کتنا بے بس محسوس کرتا ہے۔ لیکن شاید یہ انسانی تہذیب کے ارتقاء کے لیے سب کچھ ضروری ہے۔ ان بندھنوں اور پابندیوں کے بغیر انسانوں کا معاشرہ ایک حیوانی زندگی میں تبدیل ہو جاتا۔ بہرحال میں انسانی تہذیب کے ہر دور سے گزرا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی زندگی کو زیادہ نفیس اور زیادہ باضابطہ بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ میں نے لائشہ اور بوکام کے ساتھ رات کا کھانا کھایا، اور پھر میں ان دونوں سے رخصت ہو کر محل کے باہر آ گیا اور ایک چھوٹے سے ٹیلے پر بیٹھ کر رات کی خاموشی اور تاریکی میں ڈوب گیا۔ سارا جزیرہ گہرے سناٹے کی لپیٹ میں تھا۔ میری پشت پر عظیم الشان پہاڑیاں سیاہ دیو کی طرح کھڑی تھیں، جن کا سینہ چیر کر اندر پورا محل بنایا گیا تھا۔ اس وقت سارا محل بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سامنے سمندر کی موجیں یکساں رفتار کے ساتھ بھاگ دوڑ میں مصروف تھیں۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہوا بند ہو گئی ہو، ہر چیز جیسے بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ میں نے سمندر کی طرف غور سے دیکھا۔ اندھیرے میں مجھے یوں لگا جیسے ہر موج جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی ہو۔ سمندر کی پرشور آواز کو جیسے کسی غیبی طاقت نے سلب کر لیا تھا۔ میں بھی اس غیر متوقع تبدیلی پر غور کر رہا تھا کہ اچانک دور سے، بہت دور سے سمندر میں ایک ہلکی سی خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، جو ہر لمحہ بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بڑے غور سے اس آواز کو سن رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا بہت دور کہیں ہزاروں توپیں داغی جا رہی ہوں۔ توپوں کے داغے جانے کی آواز کچھ رک رک کر آ رہی تھی، اور چند لمحوں کے لیے سناٹا طاری ہو گیا۔ بڑا ہولناک اور ہلاکت انگیز قسم کا سناٹا، یوں لگتا تھا جیسے کائنات کی نبضیں تھم گئی ہوں، وقت کی رفتار رک گئی ہو، اور ہر چیز
आने वाली तबाही के इंतजार में खौफसदा होकर अपनी जगह पर जम कर रह गई हो। इस मानी के सन्नाटे में समंदर की मौजों की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। फिर अचानक एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। कानों के पर्दे फाड़ देने वाली एक भयानक आवाज बुलंद हुई और उसके साथ ही मुझे समंदर की सतह पर बहुत दूर एक स्याह चमकती हुई बुलंद दीवार साहिल की तरफ तेजी से भागती हुई नजर आई। मैं फौरन टीले से उतरकर पहाड़ी महल की तरफ लपका ताकि सोए हुए लोगों को खबरदार कर दूं कि समंदरी जजीरे पर चढ़ाई कर दी गई है। इतने में एक और कयामत खेज धमाका सुनाई दिया जो शायद इतनी दूर नहीं हुआ था जितनी दूर पहला धमाका हुआ था। हर तरफ गहरी तारीकी फैली हुई थी और बेहद खौफनाक मंजर था। पै दर पै होने वाले ये दोनों धमाके इस कदर शदीद थे कि जजीरे के महवे ख्वाह बाशिंदे बेदार हो गए। मैंने दूर से सुना एक शोर बर्पा हो गया था। लोग एक दूसरे का नाम लेकर चीख रहे थे और अपने अजीजों को पुकार रहे थे। मैं तेजी से पहाड़ी महल की तरफ बढ़ा था कि अचानक पानी की तेज और ताकतवर लहर ने मुझे सर से पांव तक शराबूर कर दिया और मेरे मुंह में नमक का जायका खुल गया। समंदर का पानी साहिल को तोड़ता हुआ कई फुट की बुलंदी पर चढ़ाया था। मैंने पीछे पलट कर देखा। टिमटिमाते हुए सितारों की मध्यम रोशनी में मुझे एक और चमकती हुई स्याह देव पैकर दीवार जजीरे की जानिब दौड़ती हुई नजर आ रही थी। मुझे यूं महसूस होने लगा कि आज शायद इस जजीरे की जिंदगी का आखिरी दिन है और अगर तूफानी मौजों का हमला इसी तरह जारी रहा तो कुछ देर में ये पूरा जजीरा टूट जाएगा। दूसरी दीवार के पानी के थपेड़े बहुत शदीद थे और अगर मेरी जगह कोई और दूसरा आम इंसान होता तो अब तक एक नातमा और हकीर तिनके की तरह बहकर कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। मगर मेरे कदम आगे ऊपर बुलंदी की तरफ बढ़ते चले गए। पहाड़ी महल और जजीरे की पूरी बस्ती साहिल से बहुत ज्यादा बुलंदी पर थी और ऊपर मौजूद लोगों को शायद अभी तक इस बात का इल्म नहीं था कि पानी की हलाकत अंगेज तूफानी मौजें तेजी के साथ जजीरे की बुलंदियों को सर कर रही हैं। मैं अब काफी ऊंचाई पर आ गया था और तब ही एक और हैबतनाक धमाका सुनाई दिया जिसने यकीनन बस्ती वालों के दिल दहला दिए होंगे, क्योंकि इसके साथ ही औरतों के रोने और चीखने की आवाजें ऊपर से सुनाई देने लगी। समंदर में होने वाले खौफनाक धमाकों और पानी की सरकश मौजों की चिंगार से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यूं लगता था कि ये लम्हात दुनिया की जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं और अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। फना का भयानक इफरीत सबको निगल लेगा, कोई बाकी न बचेगा। पानी की तेज बौछारें मेरे ताक्कुब में थी और मैं तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। अब एक तीसरी स्याह दीवार और दूर से भागती हुई आ रही थी जो पहली दो दीवारों के मुकाबले में बहुत ज्यादा बुलंद थी। इस दीवार ने मुझे बिल्कुल डुबो दिया और पानी मेरे सर पर से बहता हुआ निकल गया। ये चंद लम्हात जब पानी मेरे सर से ऊपर हुआ और फिर बह गया, एक आम इंसान की हलाकत के लिए बहुत काफी थे, लेकिन मुझे जाहिर है अपने गर्क या हलाक होने की कोई फिक्र न थी। मैं तो इसलिए जल्दी जल्दी चढ़ाइयां चढ़ रहा था कि बस्ती वालों की मदद कर सकूं और इनकी ढहारस बंधा सकूं। अब तक मैं काफी बुलंदी तय कर चुका था और मेरे ताक्कुब में खौफनाक मौजें गुर्रा रही थी। अचानक एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया जमीन मेरे कदमों तले से निकल गई हो। मैंने संभलने की कोशिश की और गिरते गिरते बचा। इसके साथ ही ऊपर बस्ती में जोरदार धमाका हुआ जैसे पहाड़ फट कर गिर पड़े हों। इस धमाके के साथ ही इंसानी चीखों का तूफान भी उमड़ पड़ा। अचानक हवा में बहुत तेजी आ गई और इसका जोर भी कई कदर बढ़ गया कि किसी इंसान के लिए अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। हवा की साएं साएं इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई गोया लाखों बलाएं एक साथ चिंगाड़ रही हूँ। इसके साथ जोर जोर से बादल गरजे और देखते ही देखते धुआंधार बारिश शुरू हो गई। हवाओं की चिंगाड़, बारिश का शोर, समंदर की तूफानी मौजों की घन गरज और समंदर की तरफ से आने वाली हौलनाक धमाकों की आवाजें, इन सब चीजों ने मिलकर गोया एक कयामत बर्पा कर दी थी। मैं गिरता पड़ता और पानी में भीगता हुआ ऊपर पहुंच गया और चट्टानों के महल में दाखिल हो गया जहाँ जगह जगह चर्बी की मछलें रोशन कर दी गई थी। बोकाम और लाइशा सामने ही खड़े हुए थे। एक कजाक अपने दोनों हाथों में जलती हुई मछलें थामे हुए इनके साथ खड़ा था। सबके चेहरों से हैबत और बदहवासी टपक रही थी। बोकाम और लाइशा के पीछे बहुत से लोग खड़े हुए थे। गालबन सारी बस्ती के बाशिंदे इस वसी व अरीज हाल में आकर जमा हो गए थे। इनमें से कुछ हाथ उठा कर जेर लब या बुलंद आवाज से दुआएं मांग रहे थे, कुछ आपस में सरगोशियां कर रहे थे, कुछ जोर जोर से बातें कर रहे थे। इनकी आंखों से खौफ व हिरास नुमाया था। मैं सर से पांव तक शराबूर महल में दाखिल हुआ। बहुत सी निगाहें मेरी तरफ उठी और फिर समंदर की जानिब मुड़ गई जहां से देव पैकर मौजें बुलंद होकर जजीरे पर हमला आवर हो रही थी। सिवाय लाइशा के किसी ने मुझ पर कोई खास तवज्जो नहीं थी। सबके सब अपनी जान की खैर मना रहे थे। लाइशा ने मुझे देखकर अपने करीब आने का इशारा किया और मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। तुम किधर से आ रहे हो क्यास? उसने सरगोशी में मुझसे पूछा, गोया वह इस बात से खौफजदा हो कि कोई दूसरा उसकी बात सुन लेगा। मैं समंदर के किनारे से आ रहा हूं, मैंने जवाब दिया। समंदर के तेवर अच्छे नहीं हैं।
तूफानी मौजें इस जजीरे का कलेजा चीर देने के दर पे हैं। समंदर में होने वाले पै दर पै धमाके बड़े हलाकत आफरी हैं। नामालूम सुबह तक इस जजीरे का और इसमें मौजूद इंसानों का क्या हशर होगा। बारिश और जलजला भी इस तूफान का हिस्सा है। अभी मेरे अल्फाज पूरे भी नहीं हुए थे कि दूर समंदर की तरफ से एक और कयामत के इस धमाके की आवाज सुनाई दी और उसके बाद पै दर पै कई जबरदस्त धमाके हुए। इसके साथ ही पानी की देव पैकर मौजें तेजी से जजीरे की बुलंदियों पर चढ़ने लगी। लोगों में चीखों पुकार मची हुई थी। औरतें चिल्ला चिल्ला कर रोने लगीं। अजीबोगरीब कैफियत थी प्रोफेसर। सब के सब लोग अपने आप को बिल्कुल बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे। मौजों के खौफनाक इफरीत हर तरफ से मुंह खोले हुए बढ़ते चले आ रहे थे और वसीअ अरीज और बेकरार समंदर के दरमियान इस हकीर तक कताए अर्ज पर मौजूद ये इंसान इनके सामने मामूली तिनकों की तरह बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। इनके पास अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं था। समंदरी तलातुम में हैरत अंगेज तौर पर इजाफा हो रहा था और यूं लगता था कि गोया आज सारा समंदर उलट पलट होकर रह जाएगा। मेरे करीब खड़े हुए लोगों की आंखों में मौत की वीरानियां रक्स कर रही थी। वो कहाँ जाते, क्या करते, इनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। किसी जजीरे पर मैसूर होकर खुद को समंदर की कातिल मौजों के हवाले करते। वह हर गुजरते हुए लम्हे के साथ खुद को मौत के करीब महसूस कर रहे थे, क्योंकि जजीरे की जमीन पर पानी की बुलंदियों में बराबर इजाफा हो रहा था। समंदर से धमाकों की आवाजें मुसलसल आ रही थी। बारिश बड़े जोरों शोर के साथ हो रही थी और पानी की सतह बढ़ रही थी। जजीरे की जमीन समंदर की सतह से कई सौ फुट बुलंद थी और यह पहाड़ी महल जिसके वसी दालान में इस वक्त सारे लोग जमा थे, जजीरे की सबसे ज्यादा बुलंद जगह पर वाक़ था। लेकिन अब जजीरे की ज्यादातर जमीन पानी में डूबी हुई नजर आ रही थी। साहिल कब का नजरों से ओझल हो चुका था और चमकता वो पानी नशेब के ज्यादातर जमीन पर काबज हो चुका था। फिर एक और स्याह दीवार बर्क रफ्तारी के साथ आई और पानी पहाड़ी महल के फर्श से सिर्फ चंद गज नीचे रह गया। अगर चंद और दीवारें ऐसी ही हमला आवर हुई तो पानी महल के अंदर दाखिल हो जाएगा। मैंने दुख के साथ सोचा और इसके साथ ये सारे लोग जो मुस्तकबिल के बारे में लंबे चौड़े मंसूबे बना रहे थे गरकाब हो जाएंगे। मैंने बोकाम के चेहरे पर नजर डाली, वो बिल्कुल खामोश खड़ा था। ऐसा लगता था गोया वो पत्थर का बन गया हो। तो उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी था। यूं लगता था गोया उसने मौत को अपना मुकद्दर समझकर कबूल कर लिया हो और अब वो इसके इस्तकबाल के लिए आमादा हो। लाइशा मुतमईन अंदाज में खड़ी थी। मुझे नहीं मालूम कि आया वो पहले से इस तूफान की आमद से वाकिफ थी या नहीं, ताहम उसके चेहरे का इत्मीनान इस बात की गुमाजी कर रहा था कि उसके लिए सब कुछ गैर मुतवक्का नहीं था और शायद वो इसके अंजाम से भी वाकिफ थी। हवा के तेज झकड़ों में उसके स्याह बाल बुरी तरह उड़ रहे थे और ढीला ढाला लिबास फड़फड़ा रहा था। अपनी इस हैत कोजाई में वो बड़ी पुरस्रार मालूम हो रही थी। अचानक पानी का एक तेज रेला ऊपर तक चढ़ता चला आया और दालान में दाखिल हो गया। पानी की शर्र शर्र की आवाज गूंजने लगी। अब सारे लोगों के टखनों तक पानी आ गया था। इसके साथ ही जोर से बिजली कड़की, हवा का तड़ाका गूंजा और समंदर की तरफ से आने वाले धमाकों की आवाज यकदम तेज होगी। इसके साथ ही लोगों की चीखों पुकार में भी इजाफा हो गया। इनके लिए फरार की सारी राहें मसदूद हो गई थी। सब लोगों के टखने पानी में भीगे हुए थे और हर शख्स इस बात की तवक्का कर रहा था कि थोड़ी देर में पानी टखनों से बढ़कर घुटनों तक और फिर और ऊपर पहुंच जाएगा और ये रात इन सब की जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। लेकिन काफी देर तक पानी की वही सतह कायम रही। अंधेरे में हर तरफ पानी की मौजें चमकती हुई दिखाई दे रही थी और किसी भी लम्हे वो इन सब इंसानों को निगल सकती थी। धमाके अब भी होते थे। इसी हालत में न जाने कितना वक्त गुजर गया, शायद 1 घंटा या शायद 2 घंटे, किसी को अंदाजा नहीं था, क्योंकि इन सब लोगों के लिए वक्त के अब कोई मानी नहीं रहे थे। उन्हें सिर्फ उस आखिरी एक लम्हे का इंतजार था जो उनके नातमा और हकीर जिस्मों को उठाकर बेपाया और लामहदूद ताकत के हामिल समंदर की जालिम गोद में फेंकते और फिर इनका कोई सुराग भी न मिले। फिर रफ्ता रफ्ता सब लोग ये बात महसूस करने लगे कि समुद्री मौजों की घन गरज में कुछ कमी आ गई है। पानी की दीवारें अब भी एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ रही थी, लेकिन इनकी बुलंदी कम हो गई थी और जजीरे तक पहुंचते पहुंचते इनका जोर काफी हद तक टूट जाता था। मैंने एक बार फिर अपने इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों के चेहरों पर नजर डाली। इन पर मायूसी की तरह उम्मीद की किरणें तलू होती नजर आ रही थी और फिर अचानक ही लोगों ने महसूस किया कि इनके पांव अब पानी में डूबे हुए नहीं हैं। वो हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पानी उतर रहा था और वाकई पानी उतर रहा था। मौजों की गजबनाक चिंगाड़ में कमी वाक़ई हो गई थी। समंदर की तरफ से आने वाली धमाकों की आवाज भी बंद हो गई थी। हवाओं के तूफानी झकड़ों में भी खासी कमी वाक़ई हो गई थी। अलबत्ता बारिश अभी तक जोरों शोर से हो रही थी, तो वो कोई ऐसी परेशान कुन बात नहीं थी। असल और अहम बात यह थी कि समंदर का पानी उतर रहा था। कज़ाओ कदर की कुव्वतों ने जजीरों को एक बार फिर जिंदगी अता कर दी थी और उसके बाशिंदों को जिंदा रहने का एक और मौका फराहम कर दिया था।
लोगों के चेहरों से सुकून और इत्मीनान झलकने लगा और अब खड़े हुए लोग जो ना जाने कितने घंटों से खड़े हुए थे आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगे। कुछ जो ज्यादा ही थक गए थे फर्श पर लेट गए। औरतों ने अपनी गोदों में उठाए हुए बच्चों को आराम से फर्श पर लिटा दिया। महल के दलान में जिंदगी की सरगोशियां नजर आने लगी और आहिस्ता आहिस्ता बारिश भी रुक गई। धीरे धीरे समंदर बिल्कुल पुरसुकून हो गया। हवा मोतदिल हो गई, बारिश छट गए और कहीं कहीं तारे नजर आने लगे। तूफान गुजर चुका था और अब समंदर की मौजें मामूल के मुताबिक बह रही थी। इक्यास, दाइशा ने बड़ी देर बाद मुझसे मुखातिब होकर आहिस्ता से कहा, तुमने तो अपनी जिंदगी में बड़े बड़े खौफनाक समंदरी तूफान देखे होंगे, क्या इससे ज्यादा होलनाक तूफान भी तुम्हारी नजरों से गुजरा है? और उसने ठीक ही कहा था प्रोफेसर। मेरी आंखों ने इस कुर्राए अर्ज पर अजीम तगय्युरात को जन्म लेते देखा था। मैंने बड़े बड़े तूफान देखे थे, ऐसे तूफान जो पूरी पूरी बस्तियों और पूरी पूरी आबादियों को बहा कर ले गए थे, जिनके नतीजे में जमीन का कलेजा शक हो गया था। पहाड़ों की जगह समंदर और समंदरों की जगह पहाड़ नमूदार हो गए थे। ऐसे ऐसे तूफान जिन्होंने कौमों और मुल्कों की तकदीरें बदल दी थी। लाइशा बेचारी को भला इन तूफानों के बारे में क्या पता हो सकता था। इसके लिए यही एक बहुत बड़ा तूफान था जिससे वह अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा दो चार हुई थी और उसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत कयामत खेज तूफान था। मैं लाइशा के सवाल के जवाब में मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहने पर इत्तेफा किया कि मैंने तो ऐसे ऐसे तूफान देखे हैं जिन्हें देखने वाली कोई इंसानी आंख बाकी न रह सकी और कोई जुबान जिंदा न रही जो इन तूफानों की दास्तान बयान कर सकती। जरा ही देर में ऐसा मालूम होने लगा गोया कभी तूफान आया ही ना था। हर तरफ मामूल के मुताबिक सन्नाटा था। समंदर अपनी रफ्तार से बह रहा था और हवा में हल्की हल्की खुशगवार खुनकी शामिल थी। जो कयामत अभी कुछ देर पहले गुजर चुकी थी इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। साहिल साफ दिखाई दे रहा था जबकि कुछ देर पहले वो तूफानी समंदर का एक हिस्सा बन गया था। कुछ देर बाद आसमान पर सुबह की पहली किरण नमूदार हुई और उसके साथ ही हजारहा परिंदों की चहकार से जजीरे की सरजमीन गूंज उठी। रात भर के थके हारे लोग नई जिंदगी के खैर मकदम के लिए उठ खड़े हुए। अब आहिस्ता आहिस्ता उजाला फैल रहा था और जब लोगों की नजरें सामने समंदर की जानिब उठी तो हैरत के मारे बहुत सी चीखें एक साथ निकल पड़ी। लोगों में शोर मच गया। वह हैरत और इस्तजाब के आलम में बुरी तरह चीख रहे थे और एक दूसरे को सामने की तरफ इशारा करके कुछ दिखा रहे थे। और तब मैंने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। बाकी प्रोफेसर बड़ा हैरान कुन मंजर था। सामने की समत दूर समंदर में जहां कल रात तक सिर्फ पानी ही पानी था, अब एक बहुत बड़ा सा जजीरा नमूदार हो गया था और आसमान की तरफ सर उठाए खड़ा था। दूर से ये स्याह रंग का धब्बा सा नजर आ रहा था और एक छोटे से पहाड़ी सिलसिले की तरह मालूम हो रहा था। बोकाम और लाइशा ने भी हैरत के साथ ये मंजर देखा और मुंह खुले के खुले रह गए। अभी सूरज पूरी तरह तलू नहीं हुआ था मगर उस नए नमूदार होने वाले जजीरे के खतूत साफ नजर आ रहे थे। जब दिन पूरी तरह निकल आया तो लोगों ने सबसे पहले तो पहाड़ी महल के उस हिस्से का रुख किया जहाँ रात के जलजले के दौरान बड़े जोर का धमाका हुआ था। लोगों को इमारत के उस हिस्से से कम दिलचस्पी इस वजह से थी कि ये ज्यादातर खाली था, सिवाय इसके कि उसके चंद कमरों में शाकानिया के साथ साथ गिरफ्तार होने वाले सिपाही कैद थे जिनमें खंघाना और दूसरे लोग भी शामिल थे। मैं भी लोगों के साथ इमारत के उस मुनहद्दिम हिस्से की तरफ गया। यहाँ मिट्टी और पत्थरों का हजारों टन वजनी मलबा पड़ा हुआ था। वो कमरे बैठ गए थे जिनमें शाकानिया के कैदी बंद थे। वो सब के सब मिट्टी और चट्टानों के नीचे दबकर उस तरह हलाक हो गए थे कि इनके जिस्मों का कोई नामो निशान भी बाकी नहीं रहा था। रात को जजीरे पर जलजले का सिर्फ एक ही हल्का सा झटका आया था और उसके नतीजे में पहाड़ी महल के सिर्फ उस हिस्से को नुकसान पहुंचा था। लेकिन एक और अहम बात भी हुई थी और वो ये कि शाकानिया भी हलाक हो गई थी। अगरचे उसके कमरे के दरवाजे खुले रहते थे और उसे बाहर आने में कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन शायद उसने नामालूम वजह की बिना पर अपने कमरे में रहना पसंद किया और छत से कई पत्थर गिर पड़ने की वजह से वो हलाक हो गई। सच्ची बात तो ये है प्रोफेसर कि मुझे शाकानिया की मौत का दिली रंज हुआ था। अजबेला जैसी ताकतवर रियासत के हुक्मरान असीरी के आलम में इस कसम पुरसी की मौत मरी कि कोई उसके पास भी मौजूद नहीं था। वो अजमीर को जन्म देने की आरजू दिल ही में लिए हुए इस जहान फानी से कूच कर गई। शाकानिया और उसके सारे रुफाका मर गए थे और जजीरे की आबादी में से बेचंद लोग हलाक हो गए थे जिनके अजीजो अकारब अब उनके लिए मातम कर रहे थे, मगर शाकानिया के लिए किसी आंख में आंसू नहीं थे। कल की बासत्वत हुक्मरां आज गोश्त और पोस्त के एक बेजान ढेर की सूरत में पड़ी हुई नजर आ रही थी। जब सुबह का उजाला पूरी तरह फैला और सूरज की किरणों ने पूरे जजीरे को अपनी सफेद चांदी से रोशन किया तो रात की तबाही के आसार हर तरफ नजर आने लगे।
जजीरे पर जा बजा सैकड़ों दरख्त टूटे हुए पड़े थे। कई जगहों से चट्टानें टूट कर गिरी थी। सब्जियों और फलों के बागात बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गए थे। शरीन चश्मों का पानी खुदला हो गया था। सैकड़ों मवेशी और दीगर जानवर हलाक हो गए थे, जिनके बेजान जिस्म जगह जगह पड़े हुए नजर आ रहे थे। साहिल पर पहुंचकर हम लोगों ने देखा जंगी जहाजों की तैयारी का जो काम अब तक किया गया था, इसका बेशतर हिस्सा जाया हो चुका है। अब तक कई जहाजों के ढांचे तैयार किए जा चुके थे, लेकिन अब उनकी जगह महज टूटे हुए तख्तों का एक ढेर था। कोई एक ढांचा भी उस तूफान से बचा हुआ नहीं था। समंदर की तूफानी मौजों ने इंसान की हफ्तों की मेहनत को लम्हों में मलियामेट करके रख दिया था। एक और बड़ा नुकसान हुआ था कि कज़ाकों की बहुत सी किश्तियां भी तबाह हो गई थी, और जो बाकी बची थी वो इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। चुनांचे सबसे पहले और फौरी तौर पर किश्तियों के काबिल इस्तेमाल बनाने की तकदो की गई, ताकि समंदर की सतह पर रातों रात नए उभरने वाले जजीरे का जायजा लिया जा सके। सारे लोगों को किश्तियों की तैयारियों के काम पर लगा दिया गया। सबसे पहली किश्ती जो नए जजीरे पर पहुंची, इसमें मल्लाहों के साथ सिर्फ मैं, बोकाम और लईशा सवार थे। जैसे जैसे जजीरा करीब आता जा रहा था, हमारी हैरत और दिलचस्पी में इजाफा होता जा रहा था। समंदर की सतह पर उभरने वाली इन सिलसिलावार चट्टानों का रंग गहरा स्याह था। न जाने कब से कितने करोड़ों या अरबों साल से ये चट्टानें समंदर के सीने के अंदर इसकी गहराइयों में दफन थी, और फिर एक हैबतनाक ज़लज़ले ने, एक मजहर कुदरत ने इन्हें तह में से निकाल कर उछाल दिया और वो एक जजीरे की शक्ल में नमूदार होगी। चार चट्टानें बीच समंदर में सर उठाए एक अजब शान बेनियाजी से खड़ी थीं, बेहिस और बेजान चट्टानें, हर किस्म के एहसास से आ रही चट्टानें, जिन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं था कि इनका वजूद इंसानों के लिए किस कदर तहय्युर खेज और हैरान कुन है।